And presence. This has been referred to earlier. So, just one very short poetic response from Ushaji to the grandfather. What remains? You did not take everything. Something stayed in my hands, in the way I wait, in how I feed others before myself. Sometimes I hear you in my own step, unhurried. If this is inheritance, it is light enough to carry and heavy enough to matter. Thank you very much. Extremely nervous. You have given it a life I never thought it could have. Thank you for that. The quiet. This collection of 117 poems is born out of a very unusual idea, as we've all realized. She's taken contemporary short stories, she's reimagined them as poems. But this is not a translation. It is not summary. It is a second life. She steps into the silences, the gaps, the things that the original stories left unsaid and gives them voice. The heart of this book, we've all very clear about it, is memory, displacement, and home, especially home in Kashmir. Poems with titles like Gurez, Herat, Homecoming carry the weight of a landscape that is both beautiful and broken. Yet Usha does not write with anger. She writes with restraint. This book is very, very wide. So, on the one hand, we have Kashmiriyat, there's Verena, there's reference to saffron, there's the voice of Lalla, Nundrishi. And at the same time, by making this a conversation with other writers, the emotional landscape of this book is extremely vast, very, very layered. I want to thank you. It's an honor for me to be a part of this book, to bring to life Smyra and the story, Smyra's Armchair. It was a story written, it's flash fiction written during the COVID period. And like, I think your generosity in everyday life, there is generosity in Dr. Munshi as writer, because the space that has been created in this book for the presence of not just the author but of the other writers, it makes it a wonderful conversation among writers, a conversation between forms. So how we navigate from a short story and how it's rendered in poetry, and then also different forms in the sense that, there is the written form and then there is the beautiful art form that's been done by Sangeeta. Being the last speaker makes me not scary. I just don't want to read anything from the book. I'm going to share two very special moments with Usha. Almost after 20 years, I have done artwork for anybody. Usha is very special to me. The first book which I did with my series drawings and Keshav Malik's poem is called Vision and Illumination, which is kept in the collection of Library of Congress because it was a different kind of a book where each artwork and one poem were coinciding or coexisting rather. Usha, one day I was, whenever I come to IIC, I definitely go to a room. लाइब्रेरी में कोई शोर मचाता है तो वो संगीता गुप्ता होती है तो मैं जब भी इसके पास जाऊंगी कॉफी पिलाओ ये करो वो करो तो उसने कहा मैं एक बुक कर रही हूँ will you do some artworks for me and I'm my cup is always full. The friends who are sitting here and those who know me, they know कि जो
overflowing type personality है, but it is impossible to say no to Usha. To what I have written, at least, So I tried to recreate. And when I spoke to some of these eminent contributors, and they said, oh, this idea is very refreshing. So, and then I told them, okay, then I need some more stories because I can't do an entire book, with these 4 stories. And they were this was their magnanimity that they have shared their stories with me. And then I recreated those stories and I told them, and what I did was, it was very difficult to recreate their stories because they are very, very evident, and I don't think that I fall in their caliber. And it took me a lot of time to recreate. But when I recreated, I made it a point that I don't miss out any twist or turn in that story. So I kept that intact. I wrote at least, like a child, I marked at least 10 or 15 times each story I read, and then recreated that. And every turn and twist in that story was translated into a poem. के बुक लॉन्चिंग का प्रोग्राम हमने देखा, बहुत अच्छा लगा। तो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हम जानना चाहेंगे कि आप इसके द्वारा क्या मैसेज देना चाहती हैं और समाज को क्या बताना चाहती हैं, प्लीज। एक्चुअली इसमें जो स्टोरीज हैं, इंट्रोडक्शन। मेरा नाम उषा मुंशी है और ये किताब मैंने लिखी है। इसमें 17 स्टोरीज हैं, नैरेटिव्स हैं, और जिसमें से 5 तो मेरी अपनी हैं। मोस्ट ऑफ द ये जो स्टोरीज हैं वो लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं। तो इसलिए अगर आप एक सेंस में देखें तो वो दे टच कॉर्ड विद द रीडर्स। तो आपने यहाँ भी सुना कि जिसने ये पढ़ा उन्होंने वही इमोशंस, वही रिफ्लेक्शंस, वही रेजोनेंसेस दे दिए। और ये अलग हटके हैं, जैसे काफ़ी स्पीकर्स ने यहाँ पर कहा भी, हटके इसलिए है कि जो स्टोरीज़ है, जो उसमें इम्पॉर्टेंट टर्न्स एंड ट्विस्ट्स हैं, उससे वो पॉइंट्स निकल गए। और जो आप प्रोज में नहीं कह सकते, जो आप टेक्स्ट में नहीं कह सकते हैं, तो you can pour your heart out when you are writing poetry, and the people will not feel bad about it. You can express those emotions, that anguish, that pain, that resilience, and that those wounds, those are there like scars. You can just, in a very plain language, you can, explain that in the poetry. इसको पढ़ने वाले किस सेंस मिलेंगे? इसको मतलब कुछ लर्निंग का है या क्या क्या मैसेज उनको मिलेगा? देखिए, इसमें लर्निंग का तो ऐसा है कि जैसे मैंने लिखा, मैंने कोई जैसे लॉस है, पेन है, वूंड्स है, वो स्कार्स है जो कितने डिकेड्स से बिल्ट अप हो रहे हैं, पर मैंने उनको एक्सप्रेस ऐसे नहीं किया कि उसमें एंग्विश है। मैं किसी को शिकायत नहीं कर रही, पर ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये होना नहीं चाहिए। तो किस तरह से हम जो गैप्स है, जो डिवाइड हुआ है, उसको हम कैसे ब्रिज करें, और बहुत सिंपल टर्म्स में, चाहे वो स्टोरीज में है, चाहे वो उन पोइम्स में है जो स्टोरीज को फॉलो करते हैं, तो उन सिंपल टर्म्स में कि उसको हम ब्रिज कैसे कर सकते। और क्या शांति का जब वातावरण होगा तो कितना सुहाना लगता है। बच्चों के बचपन नहीं छूटते, लोग घर से बेघर नहीं होते, लोगों के किसी का माँ चला गया, किसी के बाप, किसी के बेटा गया, तो घर ही तो खत्म हुआ ना। चाहे कोई भी आदमी, कोई भी सदस्य उस फैमिली का चला गया, तो उनका घर ही उजड़ गया। तो वो मेमोरीज, वो डीप वुंड्स जो हमेशा के लिए। तो इसका जो उसी का आंसर, उसी का उत्तर मैंने दिया कि शांति का अगर वातावरण हो तो उससे हमें क्या मिलता, क्या हासिल होता है। तो वो सारे जो हमारे उपवन हैं वो एक बार फिर खिल जाते हैं। तो क्या हम अपने आप को एक वर्ल्ड सिटीजन कह सकते हैं? ऐसा कुछ साधन बना सकते हैं जिससे हम अपने आप को एक वर्ल्ड सिटीजन करें। तो ये जितने भी दरारें हैं, जियोग्राफिकल बैरियर्स हैं, उनको हम कैसे खत्म करें।
Yes. मैम ये बुक इंग्लिश में है, इसको हिंदी ऑडियंस कैसे मतलब रीडर कैसे अभी इसका हिंदी अनुवाद मैं करने आने वाली हूँ। वाला हाँ, चलो। ठीक। ओके, आपके बारे स्पीकर्स हैं और इनकी भी एक स्टोरी है हम्म, सिग्मा वुमन, ओके। जिसमें इनके ग्रैंडफादर के बारे में है, और जो फर्स्ट पोएम है उसके ग्रैंडफादर यू कैन नॉट डाई। संगीता। हम्म। ये मेरी दोस्त उषा की किताब है, द क्वाइट दैट रिमेन्स। ये किताब वैसे अंग्रेजी में है, मगर कोई ना कोई जल्दी ही इसका अनुवाद भी करेगा और बहुत सारी भाषाओं में होगा, केवल हिंदी में ही क्यों होगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये किताब उषा ये नहीं बता रही हैं कि एक कश्मीरी के ऊपर क्या बीती है, वो उसी बिटरनेस के साथ कड़वाहट से बात नहीं कर रही। जब हमारा ग्रीफ बहुत लंबे समय तक हमारे अंदर रहता है तो कड़वाहट धीरे धीरे कम हो जाती है, मगर ग्रीफ नहीं जाता, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। क्या मैम तो कश्मीरी पंडितों के बारे में इसमें कुछ कहा गया है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सारी किताब ही ऐसी है। तो ये वही मैंने हाँ क्वेश्चन हाँ, मार्क में- इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो कश्मीर का दुख है जो कभी जाएगा नहीं, पर उषा की सबसे बड़ी बात ये है कि वो बिना किसी कड़वाहट के उसका बयान करती है। जब हम दुख को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं ना, तब वो ट्रांसम्यूट हो जाता दबा है, ले। और जब ट्रांसम्यूट होता है तो वो खिलता है। हमें यही सीखना है इनसे और इनकी किताब से कि दुख को कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। तो किताब पाथ ब्रेकिंग इसलिए कि मान लीजिए इन्होंने मेरी एक कहानी ली या मेरी किताब से कोई अंश लिया, तो उसको पढ़ के उसके अंदर जाकर वो उसको कैसे देखती हैं और फिर उसके ऊपर अपनी 5 कविताएं लिखती हैं। और इन्होंने मुझे और भी स्पेशल सम्मान दिया है, इतने के अलावा कि इन्होंने मेरा आर्ट वर्क भी इसमें डाला है। तो मेरे लिए तो ये किताब और स्पेशल हो जाती है, क्योंकि इन्होंने इस काबिल समझा मुझे कि रॉयल्टी मेरा देनी चाहिए हाँ आपको। रॉयल्टी में मैं अभी तक केवल मैं लड़के 3 कॉफी पे पहुंच आई हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा था पहले 2 कॉफी, अब मैंने उसमें ये बोलने का मैं तीसरा वो दूंगी। एडिशन वो बाद में है ना। हाँ, तो ये किताब इस मामले में जितने मेरे फ्रेंड्स बैठे थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस किताब में, जी, जी। इनकी 4 कहानियों के अलावा बाकी जो कुछ भी है, हर आदमी अचंभित है कि इन्होंने हमारे बात को अपने ढंग से कहा तो है, मगर वही बात कही है जो हम कह नहीं पाए थे। तो हमारे अंश में जो अनसेड रह गया था, अनकहा रह गया था, वो बड़ी खूबसूरती से यहाँ पेश हुआ है। और फिर मेरे सेंट्रल कैरेक्टर्स में से उनके ऊपर कविता लिखना मतलब सोने पे सुहागा है। और ये किताब इसलिए और बच्चों को देना चाहिए क्योंकि हम लोग स्कूल में ज़बरदस्ती बच्चों को बताते हैं कि इस कहानी का ये मतलब है, इस कविता का ये मतलब, मत बताओ, देखो कि बच्चा क्या कहता है, तो वो सीखेगा ना, अपना क्रिएटिव राइटिंग वहाँ से आएगा। उसके तो भी ये thoughts किताब हैं। तो मतलब मैं इसके ऊपर कई घंटे बोल सकती हूँ, पर आपने कहा था 2 मिनट, तो मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। उषा को बहुत मुबारक हो और मुझे भी मुबारक हो, क्योंकि मैं इस किताब में आर्ट के कारण हर राइटर के चैप्टर पे हूँ। इसके अलावा मेरी कहानी है और मेरी कविताएं हैं, तो मतलब बोनस के ऊपर डबल बोनस है। इसके अलावा मैम कुछ अपने पर्सनल लाइफ के विषय में आप बताना चाहेंगे जो इस बुक के साथ कनेक्ट करता हो आपको? मुझे अपने पर्सनल लाइफ के विषय में हाँ जो इस बुक के पर्सनल, साथ आपको कनेक्ट करता देखिए हो? जो मेरी 4 स्टोरीज है ना वो मेरी पर्सनल लाइफ की है, चाहे वो इन द मेमोरी ऑफ द गर्ल हो, चाहे द क्वाइट बिट्रेयल हो, टेल ऑफ 2 स्टीज हो, ये और अ लाइफ इन कन्वर्सेशन विद द सेल्फ हो, ये मेरे सारे आप बीती है। मैंने एज ए बुक तो आपको लोग स्टडी करेंगे, बट अगर कोई आपको जानना चाहे तो आपके तो विषय वो में क्या इन जानता 4 है? स्टोरीज के थ्रू कहानियों मेरे को को पढ़ के जान जान सकता है, जाएगा। कहानी के कहानियों साथ। को पढ़ के एकदम ओपन बुक की तरह मेरे को पहचान सकता है कि क्या किया है। लिए इस बातचीत में एक चीज पता चला है कि अगर मैडम को समझना है तो बुक को वो स्टडी करिए, उसमें बुक भी समझ जाएंगे और मैडम को भी समझ जी जाएंगे। हाँ। थैंक यू। थैंक यू, बहुत- धन्यवाद। थैंक यू। Wait. Yes, smile. Wait. Hold. Thank you.